Hello students and welcome back again in your geography class. I am Anand Pandey, your geography teacher. Students, as you know that we started the chapter number 6, rocks, and in the rocks we have completed the introduction part of this chapter. Now in this video session we are going to understand about the types of rocks, because in the previous video we covered the introduction part of the rocks and after that we completed the differences between the rocks and the mineral. So the first part that we are going to cover in the types of rocks is the igneous rocks. So now student, all of you see in your book carefully the igneous rocks is given. Now first we are going to understand about the formation of the igneous rock. So now students, all of you see that the clearly written here, the igneous word is taken from the Latin word, and in the Latin word ignis means the fire, and after that the rocks were formed due to the cooling and solidification and the crystallization of a hot molten material of the earth known as the magma found at great depth in the interior of the earth. The chemical composition of these rocks varies from aluminosilicate minerals like quartz and the feldspar to granite and the rhyolite, the collectively known as the salic rocks. Since the igneous rocks were the first to be formed, they are called the primary rocks. They are formed the basis of the formation other types of rocks. So now students, all of you understand about the formation of the igneous rocks. So now students, all of you see that the word igneous is taken from the Latin word ignis, and ignis means the fire. So now let us understand about the formation of the igneous rock. जैसा आपको पता है स्टूडेंट्स, जब वॉल्केनो का एरप्शन होता है तो अर्थ के अंदर बहुत सारा मैग्मा कलेक्ट होता है, और जो कि हॉट मॉल्टेन मटेरियल, दिस मैग्मा इज नोन एज द हॉट मॉल्टेन मटेरियल, ये हमारे अर्थ के नीचे कलेक्ट रहता है। और जब वॉल्केनो एरप्ट होता है तो यही मैग्मा क्या होता है, हमारे अर्थ सरफेस पे आता है, और जैसे ही ये हमारे अर्थ सरफेस पे आता है इसे हम लावा के नाम से जानते हैं। तो जब ये हॉट मटेरियल हमारे अर्थ के ऊपर आ जाता है, फिर इसके बाद ये जो हॉट मॉल्टेन मटेरियल जिसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं, ये धीरे धीरे इसकी कूलिंग होनी शुरू होती है, ये धीरे धीरे ठंडा होता है। फिर जैसे जैसे ये ठंडा होने जाता है वैसे वैसे इसका सॉलिडिफिकेशन भी होना शुरू हो जाता है, मींस ये सॉलिड पार्टिकल्स में बदलना शुरू हो जाता है। और जब इसका कूलिंग प्रोसेसर पूरा हो जाता है, कूलिंग प्रोसेसिंग पूरा हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन इसका हो जाता है, तो ये एक रॉक के फॉर्म में हमारे सामने आता है। जब ये एक रॉक के फॉर्म में आता है तो हम लोग इसे इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। इन द लास्ट नाउ यू सी दैट one line is also written that this rock is also known as the parent rock. इसे पेरेंट रॉक हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहली बात, एक तो ये इग्नियस रॉक ऐसा रॉक है जो हमारे अर्थ पे सबसे पहला रॉक यही बनता है, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट रॉक भी बोलते हैं। और पेरेंट रॉक की वजह ये है कि जब इसके बाद हम लोग सेडिमेंटेशन रॉक के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे या मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन के बदौलत उनका फॉर्मेशन होता है। Now the next point that we are going to understand about the characteristics of the rocks. They are hard and compact. पहली चीज, ये बहुत हार्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत मजबूत और सॉलिड होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टेन मैग्मा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि जो मैग्मा आता है जब वो कूल्ड हो जाता है और धीरे धीरे सॉलिड हो जाता है, उसके बाद ये मॉल्टेन जो मटेरियल होता है सॉलिड जब बन जाता है तो ये हमारा इग्नियस रॉक्स को फॉर्म करता है। दे आर ग्रेनुलर एंड द क्रिस्टलाइन, ये ग्रेनुलर और क्रिस्टलाइन होते हैं। दे आर आइदर फाइन ग्रेन, स्मूथ एंड कॉम्पैक्ट और मे हैव लार्ज क्रिस्टल्स विद द कोर्स टेक्सचर। The size of their crystals depend upon the rate of cooling of the molten material.
These rocks are less affected by chemical weathering because water does not percolate in these rocks. Most of these consist of silicates. They do not have the layers. They are generally weathered by the mechanical weathering. Igneous rocks are associated with volcanic activity and are found mostly in the volcanic regions. Okay. So now just we are going to understand about the characteristics of the igneous rock. तो now the first characteristics that is given, they are hard and compact. जैसे मैंने आपको बताया कि igneous rocks जो होते हैं वो काफी हार्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, क्योंकि वो एक मोल्टेन मटेरियल से बने होते हैं. जब वो मोल्टेन मटेरियल धीरे धीरे कूल होता है, गर्म से ठंडा होता है और फिर वो अपने आप को सॉलिड में बदल लेता है, तब जाके इन इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. उसके बाद दे आर ग्रेनुअल और क्रिस्टलाइन. ये ग्रेनुअल होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं, मींस इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनके ये क्रिस्टलाइन रॉक्स भी होते हैं. नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन द वॉल्केनिक रीजन. ये वॉल्केनिक रीजन में ज्यादातर आपको इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो आपको वॉल्केनिक रीजन में देखने को मिलते हैं. नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट द आंसर व्हाई द इग्नियस रॉक्स आर फाउंड इन द वॉल्केनिक region, because the formation of the igneous rocks are formed due to the eruption of the volcanoes. Because when the volcanoes are erupt, then the molten materials comes out of the earth surface and they start to cooling, and after that the cooling of the molten material they converted into the solid and it is known as the igneous rocks. Now just after that, when we understand about the formation of the igneous rocks and then after that the characteristics of the igneous rocks, now we are going to understand about the types of igneous rocks. So we classified the igneous rocks into the types like the extrusive igneous rocks and the intrusive igneous rocks. So now for understanding about the extrusive igneous rocks and the intrusive igneous rocks. Now first extrusive igneous rocks. They are formed by cooling of molten magma. On the other hand, on the earth surface, the magma which is brought to the surface fissures or volcanic eruption solidifies and grain, also called the volcanic rocks. Now first we are going to understand about the extrusive igneous rocks. अब नाउ जो एक्सट्रेसिव igneous rocks होते हैं, जैसे दो वर्ड यहाँ पे यूज किए गए. एक वर्ड यूज किया गया एक्सट्रेसिव और एक वर्ड यूज किया गया इंट्रसिव. तो एक्सट्रेसिव रॉक्स वो होते हैं जो हमारे अर्थ सरफेस पे फॉर्म करते हैं, जो अर्थ पर ऊपर की तरफ फॉर्म करते हैं, और इंट्रसिव रॉक्स वो होते हैं जो हमारे अर्थ के अंदर जो जिनका फॉर्मेशन होता है. तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्सट्रेसिव के बारे में, जान ले कि वॉल्केनिक एरप्शन हुआ और मैग्मा बाहर आया तो वो हॉट मोल्टेन मटेरियल था, फिर उसके बाद से धीरे धीरे वो कूल्ड हुआ और फिर उसके बाद वो सॉलिड हुआ, तो उसके बाद से उसने इग्नियस रॉक्स को फॉर्म कर दिया. तो ये हमारा एक्सट्रेसिव हो गया. उसी तरीके से जब हम लोग इंट्रेसिव रॉक्स के अंदर समझते हैं तो दे फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट. वो अर्थ क्रस्ट में फॉर्म होते हैं, मतलब कि हमारे अर्थ के अंदर ही फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हम इंट्रेसिव रॉक्स कहते हैं. Now next we are going to understand about the types of the intrusive rocks. Now with this diagram, now all of you see that when this volcano erupt, so now you see that the magma comes on the earth's surface, but sometimes the magma remains in the earth and they start to solidify. So this type of known as the intrusive rocks. Okay student. Now नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स. अब हम लोग नेक्स्ट जो समझने जा रहे हैं बच्चों, वो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्मेशन. When igneous rocks are exposed on the surface of the earth, they are broken down, weathering and carried away by forces and the gradation like rivers, glaciers and the ocean waves. They are dependent into the sediments, and any exposed rock due to the various agents of erosion may weather disintegrate. Okay student. Now we are going to understand about the formation of the sedimentary rocks. अब हम लोग sedimentary
रॉक्स के फॉर्मेशन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जब शुरुआत हमने की थी टाइप्स ऑफ रॉक्स की, तो पहला जो हम लोगों ने रॉक पढ़ा वो पढ़ा इग्नियस रॉक्स, उसके फॉर्मेशन के बारे में समझा। लेकिन उस लास्ट में हमने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि दिस इग्नियस रॉक इज ऑल्सो नोन एज द पेरेंट रॉक। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई द इग्नियस रॉक्स इज कॉल्ड द पेरेंट रॉक। जब इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है और वो धीरे धीरे अब वो अर्थ पे एक्सपोज होना शुरू होता है, मतलब अर्थ पे पूरी तरीके से दिखना शुरू होता है, तो दिखने के साथ साथ अब उसकी वेदरिंग भी शुरू होती है। वेदरिंग का मतलब अब उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो रॉक का टूटना शुरू होता है, उस पे पानी गिरता है, उस पे टेम्परेचर आता है, कभी वो पत्थर गर्म होगा, कभी वो पत्थर कूल होगा, फिर उस पे कभी लगातार बारिश होती है, उस पे हवा चलती है। तो ये क्या करते हैं, उसको वेदर करते हैं, मतलब उस बड़े रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में क्या करते हैं, उनको तोड़ते हैं। और यही जो सेडिमेंट्स इग्नियस रॉक से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं और एक जगह इकट्ठा होते हैं लेयर बाय लेयर। दीज सेडिमेंट्स आर नाउ स्टार्ट टू कलेक्ट लेयर बाय लेयर एंड आफ्टर दैट इनका सीमेंटेशन होता है। सीमेंटेशन मतलब कि एक दूसरे से ये अपनी ग्रिप बनाते हैं, सीमेंटेशन होता है, उसके बाद इनका सॉलिडिफिकेशन होता है और उसके बाद ये क्या होते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में हमारे सामने आ जाते हैं। Now after that the characteristics here is given. So now the sedimentary rocks, the students, all of you read this characteristics. Now few characteristics are given. Now I am going to explain about the process. Now the first process, this process is involved in the formation of the sedimentary rocks. ये जो process दिए गए हैं बेटा, ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन के बारे में बताया गया। सबसे पहले दिया गया एवोपरेशन। एवोपरेशन में क्या होता है, जब ये लेयर बाय लेयर ये कलेक्ट होना शुरू होते हैं तो जो इसमें वाटर होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे एवोपरेट करता है, ये ड्राई होता है, तो ये एवोपरेशन है। कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन का मतलब होता है ये स्क्वीज्ड करते हैं, मतलब कि ये आपस में बहुत प्रेशर क्रिएट करके एक लेयर बाय लेयर ये बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the cementation. Cementation is the last form and in this form students this rocks become the solid. और इस मतलब लास्ट फॉर्म में सीमेंटेशन में हम देखते हैं ये पूरी तरीके से सॉलिड में बनता है। तो नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट the process that involve in the formation of the sedimentary rocks. Number one is the evaporation. मतलब कि जब ये लेयर बाय लेयर जो इग्नियस रॉक्स का वेदरिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर कलेक्ट होता है, तो जो इसके बीच में वाटर होता है वो एवोपरेट करता है, ये ड्राई मटेरियल में कन्वर्ट होना शुरू करता है। उसके बाद कॉम्पैक्शन होता है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में ग्रिप बनाते हैं लेयर बाय लेयर और धीरे धीरे अब ये मजबूती की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सीमेंटेशन। सीमेंटेशन का मतलब हुआ ये पूरी तरीके से अब ये मजबूत और सॉलिड इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो, सेडिमेंट्री रॉक्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ आफ्टर दैट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन। अब इनका हम लोग फॉर्मेशन जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे, जैसे मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, केमिकली फॉर्म रॉक्स और ओरिजिनिकली फॉर्म रॉक्स। तो ये कुछ हमारे रॉक्स दिए गए हैं, जैसे कुछ रॉक्स हैं जैसे जो मैकेनिकली फॉर्म होते हैं, फिर वो जो केमिकली फॉर्म हो रहे हैं और कुछ ऑर्गेनिकली फॉर्म हो रहे हैं। तो दिस टॉपिक्स आर एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।